आवाज आ गई? हेलो 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 हेलो, वॉइस आ गई भाई? वॉइस क्लियर आ गई अपनी? हाँ जी हाँ जी, आवाज हुन देखो, हुन आ गई। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही, नो नो नो। देखो सारे बच्चे, आवाज पहुंच चुकी है अभी अपनी? आ गई है ना? चलो ठीक है, आवाज पहुंच गई, वेरी गुड भी। अमन है, नेहा, मानो, वेरी गुड भी। हेलो प्रगट सिंह, वेरी गुड वेरी गुड। चलो भी आवाज आ चुकी है बच्चों। सब तो ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਆਪਣਾ। ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ 21 ਜੂਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ। 21 ਜੂਨ ਹੈ ਸਮਰ ਸੋਲਸਟਾਈਸ, ਵਿੰਟਰ ਸੋਲਸਟਾਈਸ, ਤੇ ਦੋ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਇਕੁਇਨੌਕਸ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵਾਈਂਡ ਅਪ। ਅੱਜ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛੇ ਹੈ ਵੀ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਦੁਬਾਰੇ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਅੱਜ ਬੱਚੋ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚੋ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੰਟੀਨਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਆਹ ਫੰਡ ਬੱਚੋ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੋ ਉਹ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਬਜਟ 'ਚ ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਜਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਆਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਕੀ ਹੈ ਮੁੜ ਗਈ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਈ ਲੋੜ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੰਡ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗੀ? ਕੰਟੀਨਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚੋ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਕੰਸਰਨਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਬੱਚੋ ਕੰਸਰਨਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ? 75 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਯਾਦ ਆਈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ 75 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਵੀਟੂ, 75 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੰਟੀਨਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਆਪਣਾ 267 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਆਪਣਾ 266 ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੋ ਆਪਣਾ ਆ ਫੰਡ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 266 ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟੀਨਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚਾਬੀ, ਇਹਦੀ ਕੁੰਜੀ ਬੋਲੇ तो इसका की, इसका चाबी किहदे कोल हुंदा बच्चों? याद रखेंगे आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप याद रखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वेरी गुड। 75 दिनों अंदर कंसर्नड मिनिस्ट्री को सारा पैसा पहुंच जाता है। ਇਹਦਾ मतलब सारे मंत्री शंत्री ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ 76ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ? ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਅਤਰੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, हाँ ठीक है वेरी गुड। हाँ प्रेसिडेंट, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਊਗਾ? प्रेसिडेंट। आ सारे बंदे बच्चों पढ़ चुके हैं। आप अज की क्लास है वाइंड अप ही करना है। हर मोटे तो मोटा आर्टिकल दिमाग च लियाओ। आ देखो कैग 148 च है, पार्लीमेंट 79 च है, प्राइम मिनिस्टर 75 च है। एक ना काफी बच्चों डाउट पूछ रहे हैं भी सर प्राइम मिनिस्टर 74 जाके 75 च है। आप बच्चों टिक लावांगे 75 च है। 74 च ऐ दिता हुआ है भी राष्ट्रपति नूं एड एंड एडवाइस कौन करूगा? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये आर्टिकल नंबर अपना 74 है। आर्टिकल नंबर 74 मैं रिपीट करदा कि मैं काली बोल जाना। आर्टिकल नंबर 74 च की लिखिਆ है भी प्रधानमंत्री ते ओदा मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करूगा राष्ट्रपति नूं। ठीक है ना? ऑफलाइन क्लासां दा है बच्चों कुछ नहीं पता, कोई चक्कर वाली गल नहीं, घबराउण दी आपां नूं लोड़ नहीं। ऑफलाइन आपां की करना, टाइम वाधू बर्बाद करांगे, घरे बह के आराम नाल पढ़ो, आपां ही बड़ी गल है। हाँ 75 च अपना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सारे फैक्ट बच्चों याद रखियो। चलो अगला फिर आप कीमती पॉइंट देखना है। इसका सवाल मैंने बड़े बारी पूछा गया भी आर्टिकल नंबर 123, आर्टिकल नंबर 1 का 2 का 3 का। अज कुछ नवे आर्टिकल भी आ जाएंगे। ऑलरेडी आप काफी आर्टिकल कर चुके हैं। ठीक है बिटू, बुरा नहीं करना, सवाल का जवाब दो, टंबे पैणगे नहीं। तो आर्टिकल नंबर 123 दसो की है? आर्टिकल नंबर 123 दे विच की है?
चलो दस ही देना है। आर्टिकल नंबर 123 बच्चों राष्ट्रपति कोले पावर है, राष्ट्रपति कोले पावर है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। पहली गल तां इत्थे कुछ गल्लां अपणियां सिੱਖਣ वालियां होणगीਆਂ। वैरी गुड हर्षजोत 500 करोड़ रुपया पिया एमरजेंसी फंड वास्ते। एमरजेंसी फंड जिवें आपां घरां 'च रखदे हुंदे आ, किसी ने 20-50 हज़ार अड्ड रुपया घरों मतलब डेली रूटीन जिहड़ा आपां पैसा वरतदे आ ओहदा आपां अड्ड लुको के रखिया होਊਗਾ भी आपां इन केस ऑफ एमरजेंसी यूज करांगे। ठीक है, इहनूं आपां उस चीज़ नाल समझ सकदे हां। दूजी गल इधर आप आ गए दूजे नंबर ते आर्टिकल नंबर 123 बच्चों की है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। पहली बात याद रखियो भी राष्ट्रपति दा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी सरकार राष्ट्रपति दे ऑर्डिनेंस राही कोई बिल पास करवा लेंदी है। सीधा पंजाबी च आपां समझ सकते हैं, पर कदों ਜਦੋਂ पार्लीमेंट बच्चों सैशन च नहीं हुंदी। आ गल आपां याद रखना है, व्हेन पार्लीमेंट इज नॉट इन सैशन, व्हेन पार्लीमेंट इज नॉट इन सैशन। समझ गए आप राष्ट्रपति दी बच्चों ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर यूज उदों ही कर सकते हैं जदों अपना पार्लीमेंट सैशन च नहीं हुंदी। हुण सब तो बेस्ट पॉइंट है, ध्यान दो कमेंटां वाल ध्यान घट देना। आ देखो मैं की है सिंपल सीधा थोड़े को नहीं झाक रहे हैं, कमेंटां वाल ध्यान घट दो। ये सवाल सीखो पहला तां हुण जे पेपर नाल सवाल आ गया भी राष्ट्रपति दे ऑर्डिनेंस दी वैलिडिटी कितनी हुंदी है, वैलिडिटी राष्ट्रपति ने जिहड़ा ऑर्डिनेंस पास किया बच्चों इसकी वैलिडिटी कितनी हुंदी है। आप वैलिडिटी वैलिडिटी अपने मोबाइलों की वैलिडिटी है, जिवें ज़्यादातर मेरे मोबाइल की वैलिडिटी मुक्की पई हुंदी है, वो चीज़ है 6 हफ्ते हुंदी है, 6 हफ्ते 6 हफ्ते हुंदी है राष्ट्रपति दे ऑर्डिनेंस दी आपां कह दईए वैलिडिटी। ठीक है, बरीक कर गया ना। हाँ चलो दूजी गल ये तो पूछा वैलिडिटी, जे पूछा मैक्सिमम लाइफ, जे पूछा राष्ट्रपति दे ऑर्डिनेंस दी मैक्सिमम लाइफ कितनी हुंदी है। ये 6 हफ्ते की हुंदा बच्चों आफ्टर द सैशन हुंदा है। ये 6 हफ्ते की हुंदा है आफ्टर द सैशन। जिहड़े अपने राष्ट्रपति दी याद रखियो ऑर्डिनेंस दी वैलिडिटी है ये 6 हफ्ते हुंदा है आफ्टर द सैशन। सैशन तुहानूं पता ही है अपने संविधान च की लिखिया होया है भी पार्लीमेंट के 2 सैशनां दे विचकार 6 महीनों तो वध गैप होना नहीं चाहिए। सिमरप्रीत आपां डिस्कस करते हैं, ठीक है सिलेबस डिस्कस करते हैं, पर सवाल ध्यान ना दो माड़ा जिहा। वैलिडिटी हुंदी है 6 हफ्तियां दी आफ्टर द सैशन। हुण सैशन बच्चों अपने इस पता है संविधान की लिखिया है भी 6 महीनों तो वध आपां गैप पाउणा नहीं, आपां 6 महीनों तो वध गैप 2 सैशनां विच पाउणा नहीं। आ देखो फिर मैक्सिमम लाइफ कितनी होगी 6 महीने आ हो गए तो 6 हफ्ते आ हो गए, 1.5 महीना आ हो गया। 6 हफ्ते इज इक्वल टू 1.5 महीना, तो टोटल बच्चों कितना हो गया 7.5 महीने। आ पेपर च दोने पॉइंट आपां नूं पुछ सकदे है, बड़े प्यारे पॉइंट है, किताबां समझने बड़े औखे हुंदे है, पर जे अज भी ना समझे ना फिर तो लख लानत है। ध्यान दिओ मड़ा मैं की बोलिया भी राष्ट्रपति दे ऑर्डिनेंस की जे तां पेपर च पुछया वैलिडिटी कितनी हुंदी है आपां टिक लावांगे 6 हफ्तियां दी हुंदी है जी आफ्टर द सैशन। भी जदों सैशन पार्लीमेंट दा स्टार्ट हो जाए, चाहे समर सैशन है, विंटर सैशन है, मॉनसून सैशन है, किहड़ा मर्जी सैशन है। ठीक है, ये याद रखियो जिवें बजट सैशन वगैरह हो गया करांगे डिस्कस। हाँ मीनाक्षी वेरी गुड। तो मैक्सिमम लाइफ कितनी हुंदी है 7.5 महीने। ये दोनों पॉइंट याद रखो। दूजी गल एका दूका तीका ये पावर किहदे कोल है ऑर्डिनेंस दी राष्ट्रपति कोले। जमा डिटो पावर बच्चों किहदे कोल हुंदी है गवर्नर दे कोले। जमा डिटो पावर किहदे कोल है गवर्नर दे कोले है। तो गवर्नर कोले ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किहड़े आर्टिकल च है दूका एका तीका। एका दूका तीका राष्ट्रपति है ते दूका विचों कढ लो फिर एका तीका उत्थे दा दूका इधर कढ के एका तीका उधर करता दू वो गल होगी। किहड़ी गल होगी अपने हाई कोर्टां दी गल होगी ना। 124 च की सीगा एका दूका चौका सुप्रीम कोर्ट फॉर इंडिया, दूका चौका एका की सीगा हाई कोर्ट फॉर स्टेट नहीं दूका एका चौका ते दूका चौका एका च की है हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज। 124 सुप्रीम कोर्ट फॉर इंडिया, 214 च की है हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स, 241 च की है हाई कोर्ट फॉर यूटीज, 123 की है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, 213 च की है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर। ये सारे बच्चों कीमती पॉइंट आप याद रखने। ठीक है, अज वाला काम खतरनाक है, पूरा खतरनाक है, पर समझने वाला काम है। सवाल सौखे चिंता नहीं करनी। ठीक है, चलो फिर हुण चलदे आपां अगले सवाल ते। आ सवाल मैनू परसों भी बहुत बच्चों ने पूछा, मतलब आए दिन किसी ना किसी नंबर तो आ मैसेज पक्का आउंदा सीगा भी सर जी बिल जिहड़ा अपना आपां बिलों की बहुत गल करी है, आपां आर्टिकल नंबर 107 पढ़िया बिल किते मर्जी लियाओ, आपां 108 पढ़िया ज्वाइंट सैशन ऑफ पार्लीमेंट, आपां 109 आर्टिकल पढ़िया है, आपां डेफिनेशन ऑफ मनी बिल 110 आर्टिकल च पढ़ी है। पर बच्चा की पुछदा है भी सर 4 कंडीशनां हुंदियां भी किहड़े केस दे विच जिहड़ा बिल है वो अपना लैप्स नहीं होगा,
पंजाबी सिद्धा कहते किहड़े केस दे विच मान लो डिसोल्यूशन हो गया, आ की हुंदा भंग, कहते हुण भंग की हुंदी है लोक सभा, ਇਹਦਾ मतलब कहते जो लोक सभा भंग होगी, सारे बच्चे ध्यान नाल सुनो सवाल पुछ की रहा, काली ना करो, कहते मान लो लोक सभा भंग होगी तो उस केस दे विच कहते फिर नाल दसो किहड़ा बिल खत्म नहीं होगा, लोक सभा भंग होण दे नाल किहड़ा बिल खत्म नहीं होगा। मनप्रीत सिंह ने ए कहा, रणजीत जलाल ने बल्लभ जे भेजे है, जवाब दो जवाब। शमन ने डी कहा, शमन तो गलत हो सकते ही नहीं। सब तो आपां देखीए तो इस बैच दे विच इंटैलीजेंट बच्चा किहड़ा है, शमन ही लगता है। चरणजीत हाँ करते हैं जीरो एक्सप्लेन, ठीक है, जीरो आर भी करते हैं, ठीक है। सुहे अखर जवाब 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 बस ठीक है, चलो ठीक है। प्रदीप कौर ने भी डी किया, वेरी गुड। मनप्रीत कौर, जसप्रीत कौर, कौर अपने पंजाब च कौर बहुत इंटैलीजेंट है ना, पीसीएस भी टॉपर अपना उपिंदरजीत कौर ही है। चलो ठीक है, इधर मड़ा वापस आने आप, कहते बिल विल नॉट बी लैप्स्ड। हुण देखो कहते बिल मान लो कहते पेंडिंग पिया लोक सभा च, ये तो ऑबवियस है यार, जो लोक सभा का भंग हो गई तो बिल फिर नाल ही गया डस्टबिन च, काम निबड़ गया। कहते बिल पास किया लोक सभा ने, जो लोक सभा ही भंग हो गई बिल गया डस्टबिन च, काम निबड़ गया। कहते बिल राज्य सभा ने तो पास करके भेजता पर प्या कित्थे सी, लोक सभा च, बस फिर जिथे लोक सभा आ गई उथे भड़का दो, आंसर हो ही नहीं सकता यार, वो तो बिल आ आंसर आ गया। फिर अपना की है, कहते जेकर बिल अपना राज्य सभा च ही लिआंदा सी, बिल हजे राज्य सभा च ही लिआंदा सी ते उत्थे भी पेंडिंग पिया, हले लोक सभा च तो पास कीते नहीं, उधर लैके नहीं गए आपां, तां ये बिल फिर लैप्स नहीं होगा। ये जवाब ध्यान नाल नोट कर लो, पेपरां च बच्चों पक्का आऊगा, पक्का। इत्थे आंसर की है डी है, भी जिहड़ा बिल हले राज्य सभा च ही पेंडिंग पे, क्योंकि राज्य सभा डिसोल्व होंदी नहीं ना, ये काम ही अपना सौखा याद रखना। दूजी गल हले लोक सभा चों बिल गया ही नहीं, नॉट पास्ड बाय लोक सभा, काम निबड़ गया। समझ गए स्वीटू, ये आप पॉइंट किया फिर याद रखना। चलो भी ये तीजे का अपना आंसर की है डी, तीजे का आंसर बच्चों डी। आ सवाल है, मैंने इन्ने मैसेज करे सर सवाल समझ नहीं आया, हार के आप दोबारे फिर होर तरीके नाल लिया के आंदा सवाल। ये कहते जेड़ा अपना सैलरी हुंदी है, कहते जेड़ी अपनी सैलरी हुंदी है हाई कोर्ट दे जज दी, जिहड़ी कहते अपनी सैलरी हुंदी है हाई कोर्ट दे जज दी, वो कहते कित्थों चार्ज करते हैं आपां, सैलरी ऑफ हाई कोर्ट जज कित्थों चार्ज करते हैं। लग कर लो क्यों भांडा, आर के कौर के दोनों च बिल पास करना जरूरी है, तो होर जो वो दोने पास करनगे फिर ही है, ब्याह वाला काम है, दोनों वालों पास कराना पैंदा, रिश्ता फिर ही हुंदा। इत्थे बिल पास फिर ही होगा जो दोने हाउस राजी होणगे, फिर कहाँ राष्ट्रपति साइन करूगा, उन्ना चਿਰ बिल ते अपने की है लौंकी आंदा है। हाँ बी आंसर कह रहे यात्रा बच्चे, सीधी जी गल है। कंसोलीडेटेड फंड ऑफ स्टेट, हाई कोर्ट बच्चों पार्ट नंबर 6 में है, ऐं याद कर लिया करो, हाई कोर्ट पार्ट नंबर 6 में है, तो 6 में अपने सूबे की गल होंदी है। बट इत्थे पॉइंट मेरा पहला इंटरेस्टिंग की सीगा भी जे पुछया हाई कोर्ट के जज्जां दी, जे पुछया आपां नूं पेंशन कित्थों मिलदी है, आ सवाल सीगा उहदे, पेंशन कित्थों चार्ज हुंदी है, तां आपां टिक लावांगे कंसोलीडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अज मेरे हिसाब नाल उलझना चाहिए नहीं आपां नूं। अज बच्चों ये पॉइंट पक्का क्लीयर कर लो भी सैलरी तो मिलती है जी फंड अपने स्टेट फंड चों, सैलरी क्यों, क्योंकि जिथे बंदा काम करता है, ऐं याद रखो ना भी जिथे बंदा काम करता है तो सैलरी उही दूगा, उदों सेंटर क्यों दूगा। हुण जो बंदा रिटायर के आपदे घरे मुड़ गया फिर स्टेट क्यों देवे, फिर सेंटर देंदी है, बस ऐं याद कर लो, ठीक है। हाँ काम भी सही है, सारे बच्चे लाइक करा करो, क्लास में शेयर भी कर दिया करो, जो तुम चैनल पे पहली बार आए हो तो सबसक्राइब भी करा करो, ठीक है। हाँ चलो पेंशन, हाँ हुण मेरे हिसाब नाल आ सवाल का डाउट मन च रहना चाहिए नहीं अपने, आ ठीक है। आ सिलेबस की स्लाइड आपां पवाती, ठीक है। सारे बच्चे कह रहे सर नवा सिलेबस आ गया, नवा सिलेबस आ गया। मैं तुहानूं अक्सर हर क्लास च कहता रहा भी जिहड़ियां बच्चों इंस्पैक्टर लैवल दीयां पोस्टां हुंदियां उत्थे वखरा वखरा सिस्टम पक्का आउंदा, जिहड़ी आपां आम तौर ते 90% बच्चे तैयारी करते हुंदे आ। सर चीफ सैलरी कह रहे हो, चीफ जस्टिस की सैलरी, वो सैलरियां सुन लिखा देने, कहता ठिठ बहुत करते हैं, घरे बैठे मैं नप्पी तुरी जाते हैं। जोड़ा बच्चों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, यदी सैलरी होंगी है 2,80,000, घरे आके चेक भी कर लो, ठीक है, कितने 5-7,000 घटिया वधिया ना पिया हो। इधर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। जो पूछा बच्चों जजेस, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उन्हें सैलरी बच्चों होंगी 2.5 लाख, उन्हें सैलरी होंगी अपनी 2.5 लाख, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सैलरी कितनी है 2,80,000 है, तो जजेस जो आम जज एक ही होंगे ना, तो
और आमदन कितनी है 2.5 लाख। ਇਹਦੀ 30,000 ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀਟਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਬਮੂਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਡ ਆ ਉਹ ਮੋਹਤਵਰ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਲਰੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਆਫ ਸਟੇਟ। सैलरी पेंशन कौन देगा? कंटिजेंसी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फंड हुई पई है। चलो उत्तों बनते हैं, चलो ठीक है। आ बच्चों अपना सिलेबस है। मैं हमेशा कहता रहा भी आप आम पेपर की तैयारी करते हैं जिथे जीके 15-20 नंबर की आती है, जिथे जीके 15-20 नंबर की जीके होंगी है। आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली, माड़ी मोटी पॉलिटी पढ़ लेनी है, माड़े मोटे आप स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर्स है, और ला मरला के 8-10 क्वेश्चन अपने पेपर च वधिया बन जाते हैं, ठीक है। अपना काम की सॉल्व हो जाता है। पर एक्साइज साहब ने 40 नंबर का इकोनॉमी बेस्ड पेपर पाता रहे। इकोनॉमी बेस्ड मैं क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2 सैक्शन आ 20-20 नंबर के। जो पहला सैक्शन दिता इन्होंने, वैसे तो हैड आप टैक्सेशन लिखता, ये पता नहीं किहड़े हिसाब नाल लिखिया, क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमी है। हुण इंडियन इकोनॉमी है, ये कहने तो इंडियन इकोनॉमी है, बट ये की है? ये पूरे 8-10 चैप्टर है। ये बच्चों अपना चैप्टर पहले तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है भी माइक्रो इकोनॉमी की होंगी है, मैक्रो की होंगी है, अपने सैक्टर ऑफ इकोनॉमी आ जाती है। फिर आप कह दें भी इकोनॉमिक ग्रोथ की होंगी है, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट की होंगी है, फिर अपने 4-5 गल्लां होर भी आ जांदियां। ये तो बेसिक गल्लां हो गई। फिर गां चैप्टर भी है ना, जिवें इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा चैप्टर आ जाता बच्चों अपने इकोनॉमिक्स दे विच। फिर अपना आंदा GDP चैप्टर आ जाता, नैशनल इनकम चैप्टर आ गया। ये सारा पार्ट भी अपना इंडियन इकोनॉमी दी है। तो एग्जामिनर सवाल इत्थों पक्का फ्रेम करूगा। फिर गाहां आ सारी इकोनॉमी ऑफ पंजाब की काहदी इकोनॉमी है, की इकोनॉमी है पंजाब की? कुछ नहीं है। वो 8-10 पॉइंट है, इत्थों सवाल एक अद्धा बनूगा, वधो वध 2 सवाल बन गए, वो भी अपना इकोनॉमिक सर्वे होंगे, वो बन जाता, एडी वड्डी गल नहीं। फिर गाहां नीति आयोग है, ये बॉडीज है, GST है, नीति आयोग है, टैक्सेशन सिस्टम है, आ सारा कस्टम एक्साइज भी अपना टैक्स के विच ही आ जाता है। फिर आ इंडस्ट्रीयल यूनिट, हुण आ देखो लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रीयल यूनिट है, ये वास्ते बच्चा अपने सारी इंडस्ट्रीयल पॉलिसी पढ़नी पऊगी। 1948 की पॉलिसी तो लैके 1991 तक सारिया पॉलिसियां देखनियां पैणगियां भी 48 सरकार ने की कहा, 56 च की कहा, 77 च की कहा। ये पॉलिसियां होंदियां, उहदे आधार पर अपना की है, ये आप लाइसेंसिंग है भी कदों डी लाइसेंसिंग की है, कितने रूल्स एंड सरकारी रूल्स एंड रेगूलेशन है। ये सारा टॉपिक बच्चों अपना 20 नंबर का है, जिहड़ा कि अपना बहुत वधिया तरीके नाल हो जाऊगा। अपनी चिंता करने की लोड़ 1% भी नहीं, चिंता करने की लोड़ 1% भी नहीं। बाकी जो बच्चे पूछ रहे थे, कल ही पूछ रहे थे भी सर इस दा कोर्स ऑलरेडी लै रखे है, किहड़ा लै रखे है भी सर जिन्ना बच्चों ने हुण फ्लैगशिप कोर्स लिया। मैं हमेशा कहता रहा भी वो कोर्स बच्चों सारे ऑफिसर लैवल टारगेट करूगा। तो उत्थे अपना नैक्सट टॉपिक अपना किहड़ा होगा? इकोनॉमी होगा, जिहड़ा कि आप आराम नाल वधिया तरीके नाल सिरा तरीके नाल, ठीक है नवदीप सिद्धू, सिरा तरीके नाल आपां की कवर कर लांगे। एडी गल तां है नहीं। पर आ सिलेबस उदों भी खतरनाक है। हुण इस सिलेबस दे विच एक एडी वड्डी खतरनाक लाइन लिखी है, चुपा रुस्तमा पूरी हो, कहते इंडस्ट्रीयल लॉज एंड एक्ट्स। चक लो, इंडस्ट्रीयल लॉज एंड एक्ट्स का 44 है, किन्ने है 44, जो 7-8 तो वड्डे वड्डे है। मिनिमम वेज एक्ट हो गया, फैक्ट्री एक्ट हो गया, इक्वल रेमूनरेशन एक्ट हो गया, मैटरनिटी बेनीफिट एक्ट हो गया, काफ़ी कुछ कवर हो जाता है भी। आ सारा इंडस्ट्रीयल प्रमोशन एंड डिवेलपमेंट, आ सारा करंट का टॉपिक है। ये तो आम आराम नाल मिलदा आपां नूं, आराम नाल वधिया तरीके नाल कवर भी हो जाऊगा। बट इहदे विच्चों सब तो खतरनाक चीज़ बच्चों यह है, क्योंकि इहदे विच ही सारा कुछ कवर हो जाता, आसे पासे दिता हुआ है। आ रिपोर्टां इहदे विच ही सारा तैयार है। वैल्यूएशन, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर की हुंदा है MSME का, भी सरकार किहड़ी इंडस्ट्री नूं आपां माइक्रो कहने हैं, किहड़ी नूं आपां उहदी टर्नओवर किन्नी है, 5 करोड़ तक है, 50 करोड़ तक है, 250 करोड़ तक है, भी वो अपना कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। पर यह टॉपिक खतरनाक है। ओवरऑल ये 40 नंबरां ने दिमाग घाता अपना। परसों दे आपां हिल के जमा खत्म हो गए। आ पोस्ट नहीं फिल की, वधिया हथ जोड़ी जाते, पोस्ट कहते फिल ही नहीं की। पर जिन्होंने फिल की है वो मतलब उन्होंने हार्ट फिर फिल होया पिया हुण काहदे नाल, निराशा नाल हार्ट फिल हो गया उन्होंने भी टैंपू इकोनॉमिक्स जिहड़ा, क्योंकि इकोनॉमिक्स बच्चों इहो जिहा टॉपिक है जिहड़ा कि आम तौर पर 95% कोई नहीं करता। आम तौर पर हर इंस्टीट्यूट बच्चों कोर्स चला भी देंगे है। मैं तो समझ एडी छेती कोर्स चलावा भी किमें देंगे है भी परसों वैकेंसी है, घंटे बाद कह देंगे कोर्स लॉन्च हो गया, जिवें पहली सिलेबस का पता होंदा है। ये सारा कंटेंट बच्चों आपको अपडेटेड नवा पढ़ना चाहिए, ठीक है। आ सारा की आप नवा पढ़ा, आ सारे लॉ एक्ट नवे क्यों पढ़ांगे? क्योंकि हुण नवे पास किए सरकार ने हुण एक्ट मर्ज किए है, वो सारे मर्ज किए हुए बच्चों एक्ट पढ़े जाएंगे। चलो कोई डाउट कमेंट च
ਕੋਰਸ ਸਿਰਾ ਕੈਂਟ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਕੋਰਸ ਤਾਂ ਐਗਰੀ ਸਟਾਰ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਸੀ। ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਕੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਟੂ ਐਡਵਾਂਸ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਲਝਦੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਫੀਸ ਮੋੜਦੇ ਹੋ ਨੇਹਾ ਗੁਪਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੀ ਨਾ ਭਰਤੀ ਕਮਲੇ ਬੰਦੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਅਲੱਗ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਲੇਬਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਮੰਨੋਗੇ, 40 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਰੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਬਸ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕਲਾਸ ਪਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ। ਸਰ ਕਿਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਪੋਸਟਾਂ 3 ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਆਪਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ 40 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਆਪਣਾ 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਬੱਚਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬੱਚੋ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਟੇਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ ਬੱਚੋ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਜੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ ਆਫ ਯੂਨੀਅਨ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੋ? ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ। ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਆਫ ਯੂਨੀਅਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲੀ ਆਨਸਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਅਸਲੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਪਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਐਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਦ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ CM ਟਿਕ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਰੀਅਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਿਆ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ? ਠੀਕ ਆ ਪਿੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਵੈਸੇ 4 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਹੈਡ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੌਰਜੀਤ ਹਾਂ ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੀ ਫੈਕਟੋ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਆਹ ਵਰਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਡੀ ਜੋਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਡ ਆਫ ਕੀ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਐਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੱਚੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਡ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਹੈਡ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਹੈਡ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਡੀ ਫੈਕਟੋ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਸਮਝ ਗਏ? ਹਾਂ ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਇਹਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਸੋਥੋਂ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਐਡਾ ਸਿੰਪਲ ਜਾਲੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼। ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਕਿਹਨੇ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਹੈ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 4A ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 4A ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਾਰਟ 4A 'ਚ FD ਹੈ। FD ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ? 51A, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਆਂ? 11। ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ? 10। ਇਹ 10 ਕਦੋਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ? 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ 11 ਤੇ 11ਵੀਂ ਕਦੋਂ ਐਡ ਕੀਤੀ ਸੀ? 86ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਹਲੇ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬਾਹਲੇ ਵਾਰੀ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੌਬ ਹੈ ਦੁਆਰੇ ਫੇਰ ਲਿਖਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। 23 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ 23 ਸਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ 23 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ। ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਛੱਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਰਿਹਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਲਗਾਤਾਰ 23 ਸਾਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਰਜੀਤ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਇਹ ਆਪਣੇ, ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੰਤ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਵੀ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬੱਚੋ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਠਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੁਆਇੰਟ याद करने की लोड़ नहीं, सब नूं पता ही है। 12वीं सूची च अपने की है बच्चों पंचायतां, 74वीं अमेंडमेंट 1992 है। फंडामेंटल राइट पार्ट नंबर 3 है, आर्टिकल 12 तो लैके 35 है। पार्ट नंबर 4 की है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 तो लैके 51। मैं कहना हुण तां रात नूं सुत्ते पे भी अपने जाके पुछ लेना भी DPSP किहड़े च होए, 36 तो 51 ऐ अपने मूहों निकलने चाहिए, क्योंकि अज आपां नूं घट्टो घट्ट 10 दिन हो गए कली पॉलिटी पढ़ी जाने आपां। आ सवाल फिर बड़ा प्यारा बन गया, कहते बिल जिहड़ा अपना आप बिल लैके आने, कहते किहड़े बिल नूं आपां गवर्नमेंट बिल बोलते हैं, कहते किहड़े बिल नूं आपां गवर्नमेंट बिल बोलते हैं, दसो भी। हाँ बस अज भोग पा देना पेपर का है, अज पहला पॉलिटी का पावांगे आपां, दसो बई। विशाल अरोड़ा सर ये तुसीं दसो, ऑप्शन लैके आओ, ऑप्शन देके आप दस देंगे। वैसे ये तो हो सकता ही नहीं, आप कहना हुंदा भी आप अमेंडमेंट दे नाल सरकार बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हिला सकती, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ नहीं कर सकते। तो कमाल मनोगे मैं की क्या है, बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ तक सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर डिफाइन नहीं किया भी की हुंदा, ठीक है। ये जी आप याद रखनी है बस, फिर सीधी जी गल है। आ दसो मैनू गवर्नमेंट बिल, कहते गवर्नमेंट बिल आप किहनूं बोलते हैं, या तो बच्चे आंसर बी ते डी, रौला बी ते डी दा है, पर विच रमन ने आंसर सी कहा है, विच रमन ने कल्ले ने आंसर सी कहा है, जसप्रीत ने भी सी कहा है, रौला मेन बी ते डी च है, आर के कौर ने भी सी कहा है, रौला वैसे बी ते डी दा, रौला बी ते डी दा, तो यदा मतलब जिन्होंने बी कहा जमा सही है। पहली गल तो बच्चों गवर्नमेंट बिल नूं आपां पब्लिक बिल भी कह दिंदे हैं। ये सारे पॉइंट खतरनाक तो नवे पॉइंट है, ये नोट कर लो, सीधा इन्हां दा मत्था अपना पेपरां 'च लगूगा। गवर्नमेंट बिल नूं बच्चों आपां पब्लिक बिल भी कह दिंदे हैं। जेकर कोई भी मंत्री सरकार दा कोई भी मिनिस्टर बिल लैके आउंदा है, बिल इनीशिएट करता है, तो उन्होंने आपां गवर्नमेंट बिल बोलांगे। फिर इसे तर्ज दा उल्टा कर दो, एक हुंदा बच्चों प्राइवेट बिल। प्राइवेट बिल की हुंदा है, ਜਦੋਂ कोई भी एक MP बिल लेके आवे, ये चाहे MP रूलिंग पार्टी का होवे चाहे अपोजिशन का होवे। वैसे अपने हिंदुस्तान की सियासत का एनवायरनमेंट इहो जिहा नहीं हैगा, बहुत गंदी सियासत हुंदी है। अपोजिशन वाला भुल जे सरकार होंदे कोई बिल ले आऊगा, रूलिंग पार्टी का मान लो कोई बिल MP ਜਾਂ MP होवे, मेरे कहने का मतलब की है MP ਜਾਂ ना भी छड्ड आ छड्ड दो, चक्कर वाली गल नहीं। MP जेकर कोई आम बिल लैके आउंदा कोई भी, उन्होंने आपां प्राइवेट बिल बोलांगे। जेकर कोई मंत्री बिल लैके आउंदा उन्होंने आपां गवर्नमेंट बिल जां पब्लिक बिल बोलांगे। एनी एनी MP, वेरी गुड शमन, आप कह सकते एनी MP जेकर कोई भी होर MP बिल लैके आवे, ठीक है। कैप्टन ने ट्वीट किया मिड जुलाई च पंजाब पुलिस के फार्म भरे जाएंगे, बस ठीक है, फिर तो फार्म ही भरे जाएंगे, यानी पेपर तो फिर अगस्त सितंबर च ही लैणगे। जे हले ये तक मिड जुलाई च फार्म भरनगे, फिर फार्म भरन ते महीना लाउणगे, फिर तो इस हिसाब नाल काम अगस्त सितंबर ते जाऊ आराम नाल। मिनिस्टर ते MP च फर्क की है, कमाल करी जाते है फिर जमा घोगे। ना नंबरदार रखे, देख लो ना नंबरदार है, तो पुछी कि गलत गल पुछी है। हुण जिहड़ा MP है, हुण सारे MP है, जिहड़े बंदे आपां चुन के भेजते MP है, राज्य सभा दी भी अपने की है MP है, आ अपने 2 हाउस है, आ अपना की है राज्य सभा, आ अपना की है लोक सभा, आ सारे अपने की है MP है, आ सारे अपने की है MP है, आ सारे अपने की है MP है, आ सारे अपने की है MP है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ
15% ਕੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ 15, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਚੋਂ ਆ ਦੋ ਕੀ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਇਧਰ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠਾ, मतलब MP ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ MP ਦਾ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋਨੇ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਘੈਂਟ ਸਿਖਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦਾ ਦੋਨੇ ਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫੇਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫੇਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਸਮਝ ਗਏ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਵੀ MP ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਰੇ MP ਹੈ ਪਰ ਮਿਨਿਸਟਰ 15% ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ है, फिर ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 280। ਬੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਖੇ ਆਪਾਂ, ਭੋਲੇ ਦੇਖੇ ਹੈ। 263 ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ, 266 ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, 67 ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੰਟੀਨਜੈਂਸੀ ਹੈ, 280 ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, 280 ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। 280 ਚ ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੈ? फाइनांस कमीशन। 280 च की है? फाइनांस कमीशन। इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बच्चों केड़े आर्टिकल च है? 324 च है। इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 च है। फाइनांस कमीशन 280 दे विच है। फाइनांस कमीशन की पहला आपां गल कदे नहीं कीती, इहदी गल आपां अज करन जा रहे हैं। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ फाइनांस कमीशन ਦੀ। फाइनांस कमीशन कदों बनी है? याद रखियो 1951 च बनी है। फाइनांस कमीशन कदों बनी है बच्चों? 1951 च बनी है। फाइनांस कमीशन याद रखियो एक हुंदा चेयरमैन। फाइनांस कमीशन का बच्चों एक हुंदा चेयरमैन। फाइनांस कमीशन दे 4 हुंदे आ मैंबर। ये बड़ा ध्यान नाल सुनना है क्योंकि अखबारां ते ना सारे नाल वध हुण फाइनांस कमीशन ही हुंदी है। हाँ बिल्कुल मनप्रीत सिंह बिल्कुल, पर याद रखियो एक हुंदा चेयरमैन ते 4 हुंदे आ मैंबर। पर सब तो वड्डी गल पता की है भी फाइनांस कमीशन जो पूछा अज कितनी चल रही है तो आपां टिक लावांगे 15वीं फाइनांस कमीशन चल रही है। जे पूछा इहदा चेयरमैन कौन है तो आपां टिक लावांगे NK सिंह। NK सिंह। पर इत्थे एक सवाल सुन मैं यह दस्सण जा रहा है, पेपर वाला पक्का पाऊगा तो आपां नूं खिलार दूगा क्योंकि आपां आपदे मन च की सोचांगे पेपर च पता की हुंदा, पेपर च देख के सवाल बड़े सौखे लगदे हुंदे आपां नूं, पर याद रखियो उन्ना सौखा हुंदा नहीं। ये गल हमेशा याद रखनी है। सवाल देखण सौखा है पर जो सवाल करके पेपर दे के बाहर बैठोगे, बस च आओगे, मोबाइल बाहर कड्डोगे, गूगल ते सर्च मारोगे, उदों टेंपू टेढ़ा होने लगना है कि मारते आ भी गया होवे, फिर तो वो भी गया होवे, फिर तो आ भी गया होवे। हुण आपां की याद रखते हैं भी फाइनांस कमीशन 5-5 सालों वास्ते बनता है, पर इत्थे बच्चों एक्सैप्शनल केस है। ठीक है वीर धालीवाल, याद रखियो इत्थे एक्सैप्शनल केस की है, ये 2020 तो लैके 2026 तक का ऑपरेशनल टाइम पीरियड है। इन्हें आपां की बोलते हैं भी इस फाइनांस कमीशन का ऑपरेशनल टाइम पीरियड किन्ना है? किहदा? 15वीं का। आपां टिक लावांगे 20 तो 26, पर 99% बच्चे टिक लाउणगे 20 तो 25। मैं तो लिखा के ले लो, ये पक्की गल है, ये पक्की गल है। पर यह भी याद रखियो जो पूछा ये फाइनांस कमीशन अपॉइंट कदों किया जाता है, ये 2-3 साल पहले ही कर देंगे है क्योंकि आपदा फिर ये काम कार रिपोर्टां बनाउणियां, सरकार का सारा सिस्टम देखना, देश बारे जाणू होना, कुछ भी होना, ये 17 च ही अपॉइंट करता। NK सिंह मतलब 15वां फाइनांस कमीशन 17 च अपॉइंट कर देंगे है, पर यदा ऑपरेशनल टाइम पीरियड 20 तो लैके 26 है। चलो आप इन्ने फैक्ट आप देख ले जी। पेपर में सवाल ही ये आ गया भी फाइनांस कमीशन का फंक्शन की हुंदा, व्हाट इज द फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है? वेरी गुड मनप्रीत सिंह, व्हाट इसका फंक्शन क्या होता है? ओ वेरी गुड रविंद्र बराड़, वेरी गुड। पहली गल तो याद रखियो भी फाइनांस कमीशन ने सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन देनी है। फाइनांस कमीशन ने सिर्फ और सिर्फ की देनी है? रिकमेंडेशन। ਇਹਦਾ मतलब की हुंदा है भी इन्हें सिर्फ सलाह देनी है, वो तो सरकार की मर्जी है, सरकार मन्ने ना मन्ने, मैंडेटरी नहीं हुंदा भी भाई फॉलो करना ही करना है, फॉलो करना ही करना है। इंटैलीजेंस इंस्टीट्यूट कहते पटवारी च अकाउंट्स आऊगी, कर लो गल। एक तो ना ये जे रखे हुंदे है सवाल, वो जमा ही कॉन्ट्राडिक्टरी हुंदा,
नाम इंटैलीजेंस इंस्टीट्यूट है वो कमले सिलेबस का बच्चा ने घसाता अकाउंट है नहीं ऐतकी मसा खड़ा छुट्टिया है ऐतकी पर यदि इकोनॉमिक्स कर लो तो यही बहुत है 0R पक्का एक्सप्लेन करूंगा चरणजीत सिंह पक्का हाथ जोड़ के बेनती है ठीक है जिन्ने हाथ तुम जोड़ रहे हो उन्नी मैसेज जोड़ा लो पक्का कराऊंगा पक्का ठीक है ना जे ना भी भुल भी गया तो फोन तो पक्का करा दूं होर दस तेरा 0R पक्का पढ़ने नहीं देंगे ठीक है 0R चो तेरा आप पेपर च नंबर 0 आउन नहीं देंगे होर दस तेरे नंबर पूरे फुल बड़ा फुल लियावांगे आप चलो ठीक है इधर वापस आवा इन्हें सिर्फ बच्चों सलाह देनी है मतलब रिकमेंडेशन देनी है रिकमेंडेशन सब तो वड्डी गल की है रिकमेंडेशन देनी है कादी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट समझ गए बस आ चीज है दी कमाल दी गल है सवाल टप गया यार पर सवाल सी बड़ा जाली टप गया गल कर चलो फिर देखना कोई चक्कर वाली गल नहीं मैं आ सवाल आ गया भी कहते एज पर द कोड ऑफ कंडक्ट आप कहनी चोन जाबता हुण पंजाब च की है पूरी लहर बनी पई है चोन जाबता लगूगा चोन जाबता लगूगा चोन जाबता लगूगा कदों लगदा ले दस दो आ सवाल का जवाब दिओ कहते जदों अपने कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग जदों अपने कहते इलैक्शन कमीशन ने अपने पार्टी जी पार्टी मतलब पावर च बैठी हुंदी है पार्टी इन द पावर मिनिस्टर अदर अथॉरिटी शैल नॉट भी उदों बाद जदों बच्चों चोन जाबता लग जे जदों चोन जाबता लग जे फिर सरकार कोले पैसा वरतन वालियां पावरां खो लईआं जांदियां भी हुण जान के किसी नूं ग्रांटां ना दे देण किसी नूं पैसा ना कर देण भी ठीक है तुहाडे पिंड आ चक्को करोड़ रुपया ऐ करदे फलाना ढोंग करदे हैं क्योंकि तुहानूं पता वोटां वेले पर ठीक है वोटां साल पहलां कर लैणी गल तां उत्थे आ जांदी है पर फिर भी एक अपना कोड ऑफ कंडक्ट हुंदा है ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 36 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਸੌਖਾ ਸੀ ਯਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਬੀ ਦਿੱਤਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਦੱਸਤਾ ਓਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਹੈ ਆ ਗਿਆ ਗਲਤ ਆ ਗਿਆ ਗਲਤ ਆ ਗਿਆ ਗਲਤ ਆ ਗਿਆ जगदीप बराड़ डी जट ब्लॉक सक्साइस याद रखियो जदों बच्चों अनाउंसमेंट करती उदों ही लग जूगा जदों अनाउंसमेंट करती उदों ही लग जूगा मैनू पता है जिन्हें डी क्या है क्यों क्या है ये तो बच्चों वो हुंदा है जदों अपना प्रचार चल रहा हुंदा प्रचार ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਆ ਪੂਰੇ ਜਮਾ ਬੌਂਦਲੇ ਹੋਣਗੇ ਨਹਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛਾਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਆ ਪੂਰੇ ਪਸ਼ੂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੇਲੇ ਨਾ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 48 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ समझ मेरी वो होंदा 48 घंटे पर इत्थे जगजीत सिंह आंसर अपना की आऊगा बी आऊगा ठीक है ये सारे सवाल बच्चों पेपर ध्यान ना पढ़ियो काली ना करियो ठीक है चरणजीत सिंह अंडेमान निकोबार लो भी बड़ा प्यारा सवाल है कहते अंडेमान निकोबार तुहानूं पता है अंडेमान निकोबार दी आपदी हाई कोर्ट नहीं हैगी अंडेमान निकोबार दी बच्चों आपदी हाई कोर्ट है नहीं हाँ अमनदीप ही मैं कहना ठीक है प्रचार बंद हो जाता है किस नूं रिकमेंडेशन दिंदा हरचरण सिंह प्रेसिडेंट नूं ठीक है हाँ हुण याद रखियो भी अपने ना आर्टिकल नंबर 214 च मैं तुहानूं की कहा सीगा देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स आर्टिकल नंबर 231 भी है आर्टिकल नंबर 231 च पता की है भी आपां कॉमन हाई कोर्ट बना सकते हैं आपां बच्चों कॉमन हाई कोर्ट बना सकते हैं ये गल आपां याद रखनी है सब ने जवाब वैसे दे ही दिता लगभग सब ने सही दिता है अंडेमान निकोबार दी बच्चों कलकत्ता दे अंडर है जो पूछा बॉम्बे हाई कोर्ट अंडर फिर किहड़े आ गए याद रखियो महाराष्ट्र गोवा दादर एंड नगर हवेली दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव ठीक है ये चीज आप याद रखनी है मद्रास आ याद रखो पुडुचेरी
पुडुचेरी दी जुरिस्डिक्शन बच्चों किहदे अंडर आउंदी है, मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है। कलकत्ता आपां देख ही लिया, अंडेमान ते इत्थे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप दी बच्चों, लक्षद्वीप दी जुरिस्डिक्शन किहदे अंडर आउंदी है, याद रखियो केरला हाई कोर्ट। याद रखना तरीका, आ एल आ के है, एल के सब दा लीडर फेवरेट लाल कृष्ण अडवाणी, एल के। पुडुचेरी दा मद्रास PM, पुडुचेरी दा मद्रास। अंडेमान निकोबार दा कलकत्ता, ते बच्चों बॉम्बे हाई कोर्ट दा महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली ते दमन एंड दीव। कोई डाउट? वेरी गुड, सारे बच्चे सही का अपना सही टाइप कर रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड भी, वेरी गुड। ये चीज आप की है बच्चों याद रखने। जसपाल सिंह ऐ फिक्स नहीं होंगे भी टॉपिक अपने पटवारी च पॉलिटी किन्ने नंबर दी आऊगी, करंट अफेयर किन्ने दा आऊगा, ये कोई चीज़ फिक्स नहीं होंगी, ठीक है। भी 10 नंबर दी आऊगी कि ऐ पता आवे ना, कोई पता नहीं, कदे पेपर च पॉलिटी का सवाल ना आवे, ऐ नहीं पता पॉलिटी के 3 सवाल आ जान, नथिंग, नो आइडिया, ठीक है। असम विच किहड़ा है जी, असम च गुवाहाटी हाई कोर्ट, होर किहड़ा है जी, असम में है गुवाहाटी हाई कोर्ट, सच, हाँ ले दस दिन है। नॉर्थ ईस्ट दियां जड़ियां बच्चों अपनियां 7 स्टेटां ने, नॉर्थ ईस्ट दियां बच्चों अपनियां 7 स्टेटां, बड़ियां प्यारियां स्टेटां, वधिया पहाड़ी एरिया, जंगल वाला एरिया, ये 7 स्टेटां दे विच बच्चों 3 है, मणिपुर, त्रिपुरा ते मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा ते मेघालय 2013 च बनी सी। इन्हां तिन्हां दी आपो अपनी हाई कोर्ट है, बस ऐ याद रख लो, मणिपुर, त्रिपुर, मेघालय बच्चों इन्हां तिन्हां दी आपो अपनी हाई कोर्ट है। हाँ बिल्कुल, दिल्ली दी भी आपदी है, दिल्ली दी भी आपदी है, वेरी गुड, ठीक है। कौर इन्ना डूंघाई च पढ़न दी लोड़ नहीं आपां नूं, ठीक है, पटवारी नवीं नूं पुछदे आपां नूं। मेघालय आ देखो मैं लिखता, मणिपुर, त्रिपुरा ते मेघालय इन्हां तिन्हां दी बच्चों आपो अपनी हाई कोर्ट है, बस। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ 4 ਬਚ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਮ ਹੈ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਚਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ 4, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ 4, ਬਾਕੀ 4 ਕਮਸ ਅੰਡਰ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਸਿੱਕਿਮ ਦੀ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਕਿਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 7 ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਕਿਮ ਹੈ। 90% ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, 90% ਬੱਚੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਕਿਮ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਕਿਮ ਦੀ ਆਪਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ ਬੱਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਆ ਆਪਣਾ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਬੰਬੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ, ਦਾਦਰ ਨਗਰ ਦਮਨ ਐਂਡ ਦਿਊ ਹੈ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਮਦਰਾਸ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਕੇਰਲਾ, ਸੋ ਈਜੀ, ਸੋ ਈਜੀ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਈ ਜੀਕੇ ਦੀ ਬੁੱਕ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਨ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਮੇਨ ਕਰੰਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਰੰਟ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ 'ਚ 60-70% ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ, ਬੁੱਕ ਲਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ। ਅਮਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਕ ਬਣ ਗਈ, ਅਮਨ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ, ਅਮਨ 'ਚ ਚੱਕਰ ਪਤਾ ਕੀ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਲਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਐਮ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਆਹ ਬੜਾ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾ ਇੱਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 25-26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਕੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ, MLA, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਊਗਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ MLA। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ MLA ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਈ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ ਰਜੀਮ ਹੁੰਦਾ ਇਧਰ, ਕੌਰ ਜੋਗਰ ਵੱਖਰੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਮਿਟ ਲਾਈਨ ਰਜੀਮ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸ਼ਮਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 500 ਬੱਚੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧੋ ਵੱਧ MLA ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ 500, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੱਚੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ 60। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ MLA ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੈ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ MLA ਹੈ, 403 ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੀ ਆ 60 ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 4 ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 4 ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 4 ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਹੈ,
पुडुचेरी, पुडुचेरी। ठीक है, ये पौंडीचेरी नहीं कहना आपां, नॉट पौंडीचेरी, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਪੁਡੂਚੇਰੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਬੱਚੋ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 30। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਕਿਮ, ਸਿੱਕਿਮ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 32। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੇ ਗੋਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੇ ਗੋਆ ਦੀ 40-40। ਇਹ ਚਾਰੇ ਬੱਚੋ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ 30 ਹੈ, ਸਿੱਕਿਮ 32 ਹੈ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਗੋਆ 40-40 ਹੈ, यूपी 403 है, पंजाब 117 है। हाँ सारा कुछ आऊगा जीके च। जे पूछा बच्चों किहड़े अपने विधान सभा च पूछा किहड़े आर्टिकल च है, आप आर्टिकल आवांगे 170 च है। विधान सभा आप आर्टिकल आवांगे आर्टिकल नंबर 170 दे विच है। लो भी इस दे नाल अज दा आखिरी सवाल बड़ा ही सिंपल सवाल है, जिन्ने भी अपने सारे स्रोते क्लास देख रहे हैं मेरे हिसाब नाल हर बच्चा आराम नाल टिक ला सकदा है, कोई खास लॉजिक नहीं। उत्तों पढ़िया होया है, उत्तों पढ़िया होया है, कहते वोट पाउण दा अधिकार किहड़े आर्टिकल दे विच है। तुसीं ऐ देखो भी इह जो आपां आर्टिकल तुहानूं पढ़ाया किहड़ा है, तुहानूं मैं इह जो आर्टिकल पढ़ाया किहड़ा है 326 भड़का दो आंसर है, बस काम निबड़ गया। PM किद्दां चूस हुंदा जी, अज दा विशाल ना सिरा लाऊ जमा, वैसे कोई चक्कर वाली गल नहीं, हो सकता है। ਇਹਦਾ मतलब विशाल पॉलिटी फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, आप ये चीज़ मान सकते हैं। देखो बच्चों यदि पॉलिटी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, तो पहला तुसी मेरे हिसाब नाल पॉलिटी ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ को लाओ, ਉਹਨੂੰ बेस स्ट्रॉन्ग करो। ਹੁਣ PM कौन ਬਣੂਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਬੱਚੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, BJP ਹੈ। ਫਿਰ BJP ਆਪਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੂਗੀ, पार्लीमेंट सारे उन्होंने मैंबर च पार्लीमेंट सारे मैंबर इकट्ठे होणगे, फिर वो आपदा उम्मीदवार ऐलान देणगे भी भाई साडे वल्लों आ मोदी है, आ उन्हां दा प्रधानमंत्री होऊगा। होर PM किहदा होना, जिहदी बहुमत आऊगी, जी सरकार बनूगी, वो PM बनूगा। होर PM कौन बनूगा, है कि नहीं। ये लिखा गोवा सीट 40 है, वो किधर गया गोवा होवे 40। कल टॉपिक किहड़ा करांगे दसदे हैं। आ सवाल सारे समझ गए ना। वोट पाउण दा अधिकार अपना बच्चों पार्ट नंबर 15 दे विच है, पार्ट नंबर 15 च है, जिहदा नाम की है इलैक्शनस, जिहदा नाम की है इलैक्शनस। चलो फिर हुण माड़ा मोटा आपां दा मन बाहर कढदे हैं पॉलिटी तो। बड़ा आपां अक गए, इन्ना ज़्यादा अक गए, इन्ना ज़्यादा अक गए, इन्ना ज़्यादा अक गए। कल नूं आपां करांगे बच्चों गवर्नर जनरल, सारे तुसीं पढ़ के होणगे। हुण आपां मॉडर्न हिस्टरी दे बच्चों सारे कीमती टॉपिक चक्कांगे, जिथों सवाल बनने का पूरा चांस है। ले कल नूं फिर कल्ले कल्ले पॉइंट रट के आयो, कल नूं खलारा पा दांगे आपां गवर्नर जनरल्स का। कल नूं बच्चों आपां खलारा पा दांगे गवर्नर जनरल का। ठीक है भी, चलो फिर ऐ करते आपां। हाँ अज दा बच्चों लैक्चर हो गया कंप्लीट, अज दा लैक्चर हो गया कंप्लीट। ते कल नूं फिर आपां हुण करांगे पटियाला च, कल नूं आपां हुण की करांगे गवर्नर जनरल सवाल है। आपां हफ्ता तो हफ्ता क ला बाला चिर ना, ठीक है। आपां एक हफ्ता ला दांगे हुण मॉडर्न दे क्वेश्चनां ते, फिर जोग्राफी ते, फिर तुहानूं मैं कुछ लाइफ साइंस दे क्वेश्चन करवा दूंगा, बस ठीक है। फिर अपना काम चलण दो, खास गल नहीं हैगी ये। अच्छा ठीक है, अपने हाई कोर्टां की सैलरी पुछ रहे हो, आ देखो सैलरी आप इत्थे करवा दिंदे आ यार, ये बड़ी गल है। सैलरी वाला सवाल किधर गया, सैलरी वाला सवाल किधर गया बई, सैलरी वाला सवाल किधर आ गया, आ गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी कितनी है 2,80,000। सुप्रीम कोर्ट के जजां की सैलरी 2.5 लाख है। जे पूछया चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की कितनी सैलरी है, आप टिक लावांगे 2.5 लाख। जे पूछा जजेस ऑफ हाई कोर्ट की कितनी सैलरी है, $2.25 लाख। ठीक है, कंप्यूटर की बुक कंप्यूटर वाले सर तो पता करके दस देंगे, ठीक है। हाँ जोग्राफी भी करांगे, ठीक है। जीरो आर बच्चों जदों भी पार्लीमेंट का सैशन स्टार्ट होंदा है, जिहड़ा पहला घंटा होंदा, पहला घंटा 0 आर का मतलब होंदा है भी उत्थे अपनी सरकार का ट्रायल होंदा, सरकार का ट्रायल भी सरकार अपने को देश च अटमोस्ट इंपोर्टेंस का कोई मुद्दा च उठा हुआ है। जिवें कि अपने पार्लीमेंट वास्ते सब तो वड्डा मुद्दा उठा सी अन्ना हजारे वाला, याद है
अन्ना हजारे का अनशन कितना हिट हो गया सी, है कि नहीं। उदों फिर सरकार के खिलाफ मतलब आप कही सरकार को जवाब देना पैंदा। ये फस्ट आर, ये पहले घंटा कहते हैं, पहला घंटा ऑफ मीटिंग, पहला घंटा ऑफ मीटिंग कहते हैं। करंट अफेयर का चलो आप करवा स्टार्ट करवा देना, ठीक है। पंजाब पुलिस की भर्ती 25-26 सितंबर, ये पक्की गल भी है। चलो कोई गल खबर आप चेक कर लाँगे, ठीक है। गुस्से ना होना जी, मम्मी की क्लास सुन रहे सी, मेरे नालों पुछते भी तेरे सर की कहते इन्नी एनर्जी कितों आउंदी है। देख एनर्जी बस हम जाके रोटी खावांगे, बस कली खज रोटी खावांगे। वो होंगे नहीं अपने कैप्सूल जो होंगे राजमा, अज असीं राजमा बनाया, जाके राजमा रोटी खावांगे बस। होर एनर्जी वास्ते आपां होर एनर्जी वास्ते कुछ नहीं खाते खास। एनर्जी काहदी होनी है, तुसीं ऐ हिसाब लाओ भी सुक्के पे जमा, गल खराब होया पिया। एनर्जी वास्ते असीं होर की खावांगे बई, कुछ नहीं खाते होर एक्सट्रा ना एनर्जी वास्ते। फिर बस मेरी मम्मी मैनूं गालां बहुत कढ़दी है एक, बस फिर एक एनर्जी वास्ते आपां गालां खावांगे उतों। फिर जे बदाम भ्योवांगे पक्का, जे तो बदाम भ्योने याद रह गए फिर तो सुटे खा लांगे, नहीं सुटे कह देंगे उत्तरी बदाम भ्योना भुल गए रात, बस आ चीज़ है सर। एक दिन चलो ठीक है, फिर आप कल नूं मिलते हैं, ठीक है। मैं क्यों टाइम वेस्ट किया, क्यों पै किडनी वर्गे हुंदे। अच्छा किडनी, किडनी का काम की है, चलो दसो मैनूं किडनी का काम की है। सब तो पहला जवाब कौन देगा बच्चों, किडनी का काम की है। फिस फुस तो ब्याहां च खाने बच्चे, फिस दे मस्सी भालते है। मस्सी इत्थे घोड़ा चौंक च मिलती है मक्कड़ दे, वो 150 ਦੇ 5-4 ਪੀਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੱਛੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿੱਤਲ। किडनी का बच्चों काम होंदा है, ये अपने ब्लड नूं फिल्टर करती है, अपने ब्लड नूं फिल्टर करती है। किडनी अपने कित्थे हुंदी है, इत्थे अपने किडनियां, इत्थे इत्थे अपने की है किडनियां। आ अपने की है, आ अपना की हुंदा है अबडोमिनल कैविटी, आ अपना की है चेस्ट वाला थोरैसिक कैविटी। सब दे विचाले हड्ड जा होगा, हड्ड जा, ये हड्ड जिन्होंने कहने आपां डायाफ्रम। डायाफ्रम दे थल्ले अपने की किडनी, ते किडनी का काम की हुंदा है ब्लड नूं फिल्टर। क्योंकि ब्लड नूं फिल्टर क्यों करना बई, क्योंकि ब्लड विच वेस्ट प्रोडक्ट बड़ा पैदा हो गया। मतलब हुण अपने सारा दिन अपने इन्ने सिस्टम बॉडी च काम करते, सारा दिन अपने सैल काम करी जाते हैं, सैल काम करिए, सैल बेचारे हंबे पे है। फिर वेस्ट मटीरियल तैयार होंदा है, वो टॉक्सिक होंदा अपने वास्ते, वो बाहर कढ़ना अपना जरूरी है। जिवें अपने ह्यूमनस का बच्चों, अपने ह्यूमनस का वेस्ट प्रोडक्ट किहड़ा यूरिया, किहड़ा अपना यूरिया जिहड़ा लीवर प्रोड्यूस करता है। हुण अपने ब्लड च लीवर फरदा है, तां ही तां फिर जो किडनी कोले पहुंचूगा, फिर किडनी फिल्टर करू कि ना करू, किडनी फिल्टर करती है। जिहड़ी आपां बेच के आपां 2 किडनियां है, एक बेच के आईफोन लियावांगे, ये किडनी हुंदी है। दोनों जी पथरियां हो गई, चक लो, दोनों जी पथरियां हो गई। ब्याह का बहुत एक्सपीरियंस है, ब्याह लगभग मेरे हिसाब नाल सब दा ही हो गया होगा, जिन्हां दा नहीं होया उन्हां दा फिर शायद ही होवे, ये भी गल याद रखियो। सर नाम बोलदा स्वीटू, चलो ठीक है बई। जज नूं सैलरी यार समझ नहीं आया सर, हिस्ट्री कदों करवाओगे, हिस्ट्री बस अगला टॉपिक अपना हिस्ट्री दे होगा। चलो ठीक है फिर, है कोई खास नूं सवाल च लग नहीं रहा। बाकी फिर असीं ब्रेक लैने हैं, तो उदों बाद तुहाडा बच्चों 9 बजे सैशन होगा अरोड़ा सर दा, है ना मैथ दा, वो भी तुसीं कंटिन्यू रखियो। तो जिमैंट्री करा रहे सर, सारे बच्चे जिमैंट्री बॉक्स लैके आउणगे, पेंसिल प्रकार कंपस जिहड़ा आपां छोटे हुंदे साम के रखदे सी, है ना, वो सारे बच्चे एक बारी फिर कढ़ लिओ। आपां प्रकार स्कूलों च वरती घट है, एक दूजे खवोई ज़्यादा है। सब ने पक्का ये कांड किया हुंदा खवाउण वाला एक बारी। सर जी के भी सारा, जी के सारा कुछ आऊगा, जसपाल सारा कुछ आऊगा, मिहनत वाली गल है बई, सारा कुछ आऊगा जी के, सारा कुछ आऊगा, सारा कुछ आऊगा। सर दिल्ली हाई कोर्ट के जज नूं यार पे दिल्ली हाई कोर्ट ने यूटी तो ऑबवियस सरकार देऊगी उत्थों दी, तो होर हुण जिथे जिथे हैगी है सरकार नहीं बैठी, उत्थे सरकार देऊगी आपे। चलो ठीक है, कोई कमेंट बार बार आई है, ठीक है चलो ठीक है, फिर आप बच्चों कल नूं मिलते हैं, कल नूं मिलते हैं आप। ओके बाय, सत श्री अकाल फिर सारिਆਂ ਨੂੰ, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। याद करा दो मैनूं, मैसेज कर दो, ठीक है, बदाम भ्याउण नूं मैसेज कर दे मैनूं।